Hello students, welcome back to your science class. In the afternoon, the videos which I sent, I told you like where does what happen in the gut, okay, and what is the order. What is the order in which the nutrients are broken down. Okay, so I had to mainly tell you what happens in the small intestine, right? So I was telling you when the chyme enters from the stomach, when it enters into your this small intestine, okay, then you'll notice that what happens, that chyme is broken down into much simpler particles. Okay, now what happens, there are two other glands also. One is liver, okay, which is the largest gland of the body. Okay, it lies at the right corner. If you touch just before your right chest, you can feel it. Okay, that is you can say it's just below your right lung, for that matter. Okay, so that is your gland, liver. Okay, and so what is the function of liver? First of all, it's a gland, okay, and it prepares or makes something known as bile juice. Okay, bile juice is green in color. Okay, it's green in color. Alright, and this bile juice, what does it does? It's also a kind of digestive juice. Okay, it's a kind of digestive juice, but it mostly acts on fats. Okay, mostly acts on fats. As I told you, stomach mein there are certain chemicals which get activated or which come into action in the presence of acid. Okay, and they break down proteins, but fats are not broken down in the stomach. Fats are broken down in the intestine. Okay, and just because the bile juice is released into the small intestine. Okay, let me once again clarify. Small intestine is the coiled part just below your stomach. Okay, there is a J-shaped part basically. This is your stomach. This is where your small intestine begins. Okay, it's somewhat like this, coiled up, and then this is how your large intestine also this is your large intestine's end. Okay, so this is your small intestine, SI. Okay, now you can see this, if you just come from here, you can see this is like ulta wala J lag raha. I can see this is a J-shaped thing. Okay, so this is the part. Here is where your where does your liver lie? Okay, so if you just notice, your liver lies just along. It's like this. Okay, it comes like this. Okay, somewhat like this, and yes, it's like this. So this is your liver, a little bit more like this. Okay, so this is your liver. Alright, and you'll see there is a small sac-like structure here. Okay, sac-like structure. Sac मतलब एक pouch type structure होता है. Okay, now this pouch stores bile juice. Okay, I also told you in the second or third video that this pouch has a name. It's called gall. It's not called just like ball होता है वैसे ही gall है. ठीक है, pronunciation same है. Gall bladder. Okay, gall bladder. ब्लैडर का मतलब होता है एक तरह से एक पाउच. इट्स कॉल्ड अ ब्लैडर. ठीक है, गॉल ब्लैडर. इसका क्या काम होता है? इट स्टोर्स बाइल जूस. बाइल जूस बनता कहाँ पे है? लिवर पे. बट स्टोर कहाँ पे होता है? बनकर स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में. ओके, सो व्हाट हैपन्स, दिस लिवर इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद योर स्मॉल इंटेस्टाइन. रादर मैं इसको ऐसे अगर बनाऊँ, तो ऐसे अगर मैं इसको मॉडिफाई कर दूँ, ठीक है, तो आई कैन जस्ट मेक इट लाइक दिस, ठीक है, थोड़ा सा
थोड़ा सा इस तरह. This is your stomach and here is where your this is where your small intestine begins. इधर से. Okay. This is your small intestine वाला part. Okay, so this is your small intestine. From here is where your small intestine begins. Okay, so you can see that it is in close contact with the liver. Okay, and also the gallbladder. So what happens, not the gallbladder, just the liver, not the gallbladder. You can see it is in close contact with the liver. Okay, so when the liver prepares the bile juice, it releases that bile juice into the small intestine. Okay, where the chyme has already entered. Suppose this is a chyme. Okay, this is a chyme. I'll just give it a color, for example green color, for a orange color. Okay, and somewhat like this. Okay, suppose this is a chyme. It has entered your small intestine right here. Suppose right here. Okay, so suppose this is an orange color thing is a chyme. Okay, it has entered your small intestine. Now the fat content or the fat part of that chyme might consist of little bit of proteins also, the leftover unbroken proteins, जो थोड़े बहुत बचे कुचे रह गए हैं proteins which are not yet broken down. वैसे 50% तो as I told you stomach में break down हो जाते हैं. बाकी के जो 40% जो बचता है that breakdown occurs in your स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, तो जो 50% अनडाइजेस्टेड या अनब्रोकन डाउन प्रोटीन्स हैं और थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट्स होंगे. ठीक है, लाइक अबाउट 30 to 40% कार्बोहाइड्रेट्स बचे होंगे. ठीक है, एंड योर फैट जो होता है वो ऑलमोस्ट 100% होता है काइम में. ठीक है, वो बिल्कुल भी ऊपर वाले रीजन्स में बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ होता है. वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ब्रेक डाउन होता है बाय द एक्शन ऑफ द बाइल जूस. सो बाइल जूस is mainly responsible for breaking down fats. It does not act on proteins or carbohydrates. ठीक है, प्लस इसका एक और फंक्शन होता है कि ये इसका जो क्या बताऊँ मैं, चलो छोड़ो, उसको छोड़ दो आप, यही समझो बस. इसका बाइल जूस का यही फंक्शन है, ब्रेक्स डाउन द फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, नाउ बाइल जूस में एक ऐसी चीज़ होती है, आई गेस मैंने आपको शायद बताया था, जैसे कि जो आपका सलाइवा होता है उसके अंदर एक केमिकल होता है. ओके, सलाइवा के अंदर जो केमिकल होता है दैट्स कॉल्ड एमाइलेस. ओके, दिस एमाइलेस ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज. ठीक है, कोई भी तरह का कार्बोहाइड्रेट होगा. ठीक है, स्टार्च इनटू ग्लूकोज, वो भी करीबन 50% या 30%. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर केमिकल इज प्रेजेंट इन सलाइवा. ओके, सिमिलरली जिसमें भी एस होगा ना एंड में, उससे समझ लो एस का मतलब है कि वो एक ऐसा केमिकल है जो कि ब्रेक डाउन में यूज़ होता है. ठीक है, मतलब किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करने के लिए वो केमिकल यूज़ होता है. अब मैं केमिकल बोल रही हूँ, आप केमिकल की जगह एक नया वर्ड लर्न करो, एंजाइम. आपने शायद ये पढ़ा भी होगा पहले, एंजाइम. ठीक है, तो एंजाइम ये समझ लो, एंजाइम इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल. ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन. वैसे इस केस में हम ये समझ सकते हैं, एंजाइम वैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं. बट इस केस में क्या है कि ये वाले जो एंजाइम्स हैं, एमाइलेस हो गया, और जैसे आपको मैंने पहले बताया था सेल्यूलेस बताया था, जो कि विच इज़ एब्सेंट इन ह्यूमंस. ठीक है, सेल्यूलेस, इसमें भी एज है लास्ट में. ठीक है, और एमाइलेस में भी एज है. और एक और एंजाइम बता रही हूँ मैं जो बाइल जूस में प्रेजेंट होता है, दैट्स कॉल्ड लाइपेस. ठीक है, लाइपेस, लाइप से आप लिप से मतलब लिपिड्स. ठीक है, लिपिड्स का मतलब होता है फैट. ओके, लिपिड का मतलब होता है फैट. तो जो लाइपेस है इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन फैट और लिपिड्स. ठीक है, यू डोंट गेट टू मच कन्फ्यूज, बस इतना याद रखो. किसी भी आप ये अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा, आप आराम से देखो वीडियो को, इतना ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट अंडरस्टैंड कि लाइपेस, जिसमें भी सबसे पहली बात ये समझो कि कोई भी ऐसा केमिकल, सबसे पहले एक एंजाइम क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ केमिकल विच इज़ इन केस ऑफ, अगर हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करें. ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ओके,
द एंजाइम्स विच आर ऐसे केमिकल्स होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर यूज टू ब्रेक डाउन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जब प्रोसेस हो रहा है पूरा डाइजेशन का, ठीक है, जैसे जैसे फूड नीचे आ रहा है वैसे वैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे हैं। जैसे माउथ में आपका एमाइलेज होता है, सलाइवा के अंदर, राइट। सेल्यूलेज आपका होता ही नहीं है इसमें। लाइपेज जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग जगहों पे ये एंजाइम्स रिलीज़ किए जाते हैं थ्रू डिफरेंट ग्लैंड्स, ठीक है, ओके, थ्रू डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स होते हैं, जिनमें से कुछ केमिकल्स को एंजाइम्स बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, आपको पहले ही मैंने बताया था, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, इट्स अ मिक्सचर बेसिकली, ठीक है। तो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं, ये पूरे जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, राइट फ्रॉम च्यूइंग द फूड टिल एक्सक्रीटिंग दैट फूड, ठीक है, उसको बाहर निकालना, ये पूरा ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस डिफरेंट हमारा जो पूरा गट है उसके अंदर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं, ओके, एंड दोज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी कि एक एंजाइम एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट पर एक्ट करेगा, ठीक है, एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करेगा। अगर एमाइलेज है तो वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करेगा, इट विल नॉट एक्ट ऑन फैट और प्रोटीन, नेवर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो वी कैन से दैट जो भी एंजाइम्स की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एंजाइम्स चाहे कोई भी टाइप का एंजाइम हो, यहाँ पे हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है दैट एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, ठीक है, ये स्पेसिफिक होते हैं इन द सेंस कि ये एक ही पर्टिकुलर चीज़ पे एक्ट करते हैं, ठीक है, एक ही पर्टिकुलर एक्शन करते हैं, ठीक है। एमाइलेज है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करेगा, उसी तरह जो लाइपेज है वो सिर्फ लिपिड्स या फिर फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा। किस में ब्रेक डाउन करेगा फैट्स को? फैटी एसिड्स, FA लिख रही हूँ, प्लस ग्लिसरॉल, ये दो चीज़ों में, ठीक है, जो कि आपको बताया था मैंने, ये इसके रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। ये 2 बीड्स एक रिपीटिंग यूनिट हो गया, फिर 2 बीड्स का एक रिपीटिंग, ऐसे ही पूरी चेन जो होती है, ठीक है। तो ये जो एक रिपीटिंग यूनिट है ये है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों, ठीक है। इसका किस में? फैटी है, उसमें फैट्स में या फिर लिपिड्स में, ओके। आई होप दिस मच इज़ क्लियर, ठीक है, ओके। बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में।